and taken interest in the budget which has been presented here. Let me at the outset thank the people of this country for giving this government, headed by Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji, his historic third consecutive term in office. It actually reaffirms the faith the people have and the commitment with which Honorable Prime Minister is leading the country, and therefore building stability and coming up with people-centric policies. We shall all work together to build a Vikasit Bharat by the year 2047. I am extremely humbled by the trust faith 19 में ले आने वाले कौन है सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी they can go on shedding crocodile tears about farmers. कोई implementation में कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में, ऊपर से I would say even for several decades कुछ भी नहीं किया. The failure of the flagship loan waiver. सर, मैं failure of the loan waiver 2008 के ऊपर बात करना चाहता हूँ. 2008 के चुनाव में किसान के लिए लोन वेवर के ऊपर इतनी सारे बातें की. CAG found gross irregularities in the implementation of the 50,000 crore agricultural debt waiver and debt relief schemes. एक आध विषय उसमें CAG रिपोर्ट में कहा गया कि around 164 crore was waived off in violation of the guidelines. Implementation में पूरे के पूरे गपलाबाजी करने वाले कांग्रेस है सर. 22% of the cases में lapses and errors पाया गया. 8.5 farmers out of the accounts audited were not eligible to get loans. शायद जीजा बच्चीजा आ गए इसीलिए लोन जिनका मर्जी दे गए. कोई इसमें मेजरिंग मापदंड कोई फॉलो नहीं किया. 34% of the eligible beneficiaries of the test checked accounts were not issued debt waivers certificate. ये मैं मानती हूँ बेरहम एक स्टेप है सर, जिसमें अगर बैंक वो सर्टिफिकेट नहीं देता वो किसान दोबारा लोन नहीं ले पाता. 34% of the eligible cases में वो सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया. इनके लोन वेवर जिसके ऊपर वो जीत कर आए 2009 में, उतना कपलेबाजी हुआ उसमें. आज किसान के ऊपर रो रहे. सर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 15 ऑनरेबल मेंबर्स ने बात किया. सर, इसमें कुमारी शहजाद, अभिषेक बैनर्जी, सौगता रॉय जी, हिबी ईडन, राजीव राय, दुराई वाइको, पप्पू यादव जी, डिम्पल यादव जी, एनके प्रेमचंद्रन जी और के सुब्रायन जी, ऐसे बहुत सारे, डॉक्टर सुमति, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की. मैं उनका एक आध विषय स्पष्ट करना चाहती हूँ सर. आवर पॉलिसी टू मेक यूथ, इस बजट में यूथ के लिए 5 ऐसे स्कीम का एक बड़ा सा PM का युवा पैकेज हमने ले आए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, स्किल ट्रेनिंग भी है, इंटर्नशिप भी है. आवर पॉलिसी इज देयरफॉर टू मेक यूथ सक्षम, स्वतंत्र और समर्थ. इसीलिए to make them competent, independent and capable, a lot of schemes have been brought in other than the 5 schemes put into PM package. 48 crore mudra loans worth 29 lakh crores have been dispersed since 2014. 29 lakh crores का dispersal हुआ मुद्रा में. इसीलिए इस बार क्योंकि वो सक्सेस हुआ है, हम उसको 20 लाख रुपीस तक अमाउंट बढ़ा रहे, 10 से लेकर के 20 तक बढ़ा रहे. मैं ये 5 स्कीम के ऊपर ज्यादा बोल नहीं रही हूँ सर, बट आई वांट टू से यूपीए इरा में जॉबलेस ग्रोथ के विषय में एक विषय हाईलाइट करना चाहती हूँ सर. आरबीआई के क्लेम्स डेटा जो पीरियोडिकली हमें इकोनॉमी के ऊपर पिक्चर देता है, वो
एम्प्लॉयमेंट यूपीए की इरा में, मतलब 2012 to 13 में और 13 to 14 में टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है, ये वो जिक्र करता है आरबीआई की रिपोर्ट। उनके कार्यकाल में जब टोटल एम्प्लॉयमेंट का नंबर डिक्लाइन होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। मैं आज उठा रही हूँ इस हाउस में कि उस समय के एम्प्लॉयमेंट क्यों घटा, why did it come down? If you are claiming that your economy management was all very good, how did total employment figure come down? And this is RBI data, not mine. Second, sir, formal employment was badly hit. Total persons engaged during the UPA time, annual survey of industries कहता है कि कोविड पैंडेमिक के टाइम, हमारी सरकार के टाइम से ज्यादा डिक्लाइन उस समय हुआ टोटल पर्सन्स का एंगेजमेंट में। This is a data about 2012-13 employment total persons engaged decline हुआ उस समय। Sir, we want to highlight the fact that the annual periodic labor force survey reports show that the labor market indicators for persons in the age group of 15 years and above has steadily improved under Prime Minister Modi 2017-18 to 2022-23. Our employment figures have improved. I'm giving you at least 4 indicators for that. Labor force participation has increased from 49.8 in 2017-18 to 57.9% in 22-23. Labor force participation number. इसमें women labor force participation has risen to 37% in 22-23 from 23% which was in 2017-18. Women का participation भी increase होगा. Youth the unemployment rate has declined from 6% in 2017-18 to a low of 3.2% in 22-23. Youth unemployment for the age group 15 to 29 has declined sharply from 17.8% in 2017-18 to 10% in 22-23. So the last point on this employment debate, sir, SBI research report which was released in July 2024 said India created 12.5 crore jobs between 2014 and 23 compared to only 2.9 crore during the UPA 10 साल। 2.9 crore UPA के 10 साल में, मगर अभी 12.5 crore हमारी 10 साल में सर। सो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बार बार गलत फहमियां प्रचार करना ये छोड़ दे, क्योंकि डेटा उसके खिलाफ है। सर, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। Government was run by them for the economy, did not know when and how to withdraw the stimulus, leading to a high double-digit inflation between 2009 and 13, high fiscal deficit and debt, crowding out private investment. So between January 2012 and 2014, just the 22 months, of the total 28 months, 22 months the inflation was above 9%. Almost double digit and almost double of the forbearance limit that is permitted. Inflation के इनके रिकॉर्ड ही है सर, उसको बीट करना आसान नहीं है। इसीलिए मैं बात बोल रही हूँ, यूपीए सर, UPA inherited a stable macroeconomic environment with inflation at 3.8% from 1999-2000 to 2003-4। अटल जी के समय पर इन्फ्लेशन उस रेंज में पर था, उसको इनहेरिट किया यूपीए ने। Comparatively, annual inflation rose to 8.1% between
2004-5 to 2013-14, अटल जी का 3.8%, इनका 8.1%। यही है इनका रिकॉर्ड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर। सर एक्चुअली क्योंकि हमारे एमपी साहब ऑलरेडी एक स्लोगन दे रहे, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हिंदी इलाके से नहीं आती हूँ, फिर भी ये याद है, कांग्रेस आई महंगाई लाई, ये है इनका रिकॉर्ड। सर because economy was in such poorly managed state because of inflation, I want to quote sir RBI governor, उनका नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि सदस्य नहीं है इधर, मगर वो एक किताब लिखे हैं, उस किताब में वो बोलते हैं, I quote, the finance ministry used to pressurize the RBI to soften interest rates and present a rosier picture of growth to shore up sentiments। क्योंकि आपके आर्थिक व्यवस्था इतना बिगड़ गई थी, आप आरबीआई को फोन करके उनको बोल रहे हैं कि प्लीज ठीक से मैनेज करो भैया, क्योंकि सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएगा। आप कुछ मैनेजमेंट नहीं किए, मगर ये किताब में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर लिख रहे हैं सर इनका इकोनॉमी के मैनेजमेंट के ऊपर। शेम, वो हमें पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हो। सर इंडियाज इन्फ्लेशन between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%, so UPA 1 and 2 put together 8.1%। अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 इयर्स में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 पुट टुगेदर 5.1%। कहाँ है 8.1%? हमारे 5.1% कहाँ है? मैं ये भी दुख के साथ कहना चाह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल प्राइस को 2 बार कम किए, बीजेपी स्टेट्स ने कम किया, इन्फ्लेशन हटवाए, मगर यूपीए के स्टेट्स कोई कुछ नहीं किया, उसके वजह से उनके स्टेट में इन्फ्लेशन हाई रहा। देश के लिए नुकसानदायक पॉलिसी है यूपीए का। ठीक है, हम कैसे मैनेज किए इन्फ्लेशन? ग्रुप ऑफ एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड का हर स्टेप हर बार उठाते हैं। मैं उदाहरण देती हूं सर, भारत ब्रांड आटा, राइस और पल्सेस का विषय हमने खरीद करके सब्सिडी के साथ जनता को पहुंचा रहे हैं। भारत आटा एट 27.50 रुपीज पर केजी, और लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। 14.87 लाख टन्स have been sold for common public। भारत राइस 27.5 रुपीज पर केजी में चावल मिलता है और 13.98 लाख टन्स बिक्री हो गए हैं सर, लोग खरीद रहे हैं। भारत चना दाल 60 रुपीज पर केजी के 1 केजी का पैक 11.52 लाख टन सोल्ड हो गए। भारत मूंग दाल, बोथ मूंग दाल और साबुत मूंग दाल 2984.37 टन्स का सेल हो गया है। आम नागरिक तक हमारे भारत ब्रांड आटा पहुंच रही है, इसीलिए इन्फ्लेशन को फेस कर पा रहे हैं। सर मैं अगले एक विषय, मुख्य विषय में आ रही हूँ। SC ST को इग्नोर कर रहे हैं सरकार, विमेन एंड पुअर को इग्नोर कर रहे हैं। इसमें 4 लोग बात किए, चरणजीत शनी, श्रीमती डिंपल यादव, के राधाकृष्णन एंड तुल तिरुमावलवन।
all members, honorable members of parliament who have raised this issue, I want to say SC or ST or women के allocation has gone up substantial. Number there you sir, 23-24 में 1,59,148 crores था SC का. इस साल 1,65,493 crores, 6,345 crores और बढ़ाए ST 1,19,706 crores, 1,24,909 crores now, 5,113 crores अधिक we have increased it. Women 2,38,220 crore पिछले साल, इस साल 3,27,158 crore, 88,938 crores ज्यादा दिए हैं इस साल में. सर इस विषय में थोड़ा ऑनरेबल स्पीकर ध्यान से आपके सामने विषय रखें. SC/ST का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ. कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC/ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया. उसका पता नहीं चल रहा कहाँ है. So far of the total, Karnataka government has spent 2,228 crore, including 1,587 crore from the SC/ST sub-plan and 641 crore from the tribal sub-plan specifically. God knows where this is going. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media, I want to ask माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए. कर्नाटका में जाकर के SC का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए. इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है. उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला. फिर कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में SC के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए, पूछ ले कि क्या हो रही है. SC के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे. SC के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है. कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर. इसमें सर विषय देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग बात. नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो घपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं. मगर उधर नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ है जो मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़. ये देख लीजिए क्या कपड़ा करो, फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो. SC का पैसा सर, ST का पैसा सर, दोनों उधर घपले हो रही है, मगर इधर SC के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे. SC के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न पूछ रहे. In the past BJP government, how many scams have been occurred? सर स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी, ऑनरेबल मेंबर OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा. आई वांट टू हाईलाइट 3 ऑनरेबल मेंबर्स, अभिषेक बैनर्जी जी, OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा.
in the last decade, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब में कैसे क्या है विषय, उनका कंसर्न है स्किल इंडिया मिशन में सक्सेस नहीं हुआ. मैं उनको जेंटली बोल सकती हूँ, इन द लास्ट डिकेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ हैज इंक्रीज्ड शार्पली, rising from 34% in 2014 to 51% in 24. ये सब क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनके अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसके वजह से वो आगे आना संभव मान रहे. और इस बार बजट के द्वारा 5 स्कीम्स का पैकेज पीएम स्किल फॉर यूथ और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के पैकेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे. यूथ के लिए हम काम करेंगे. और हमारे पोजीशन सर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में 19th पोजीशन में थे हम 2017 में स्किलिंग में. आज 11वीं पोजीशन में 11th रैंक में आ गए हैं बाय 2020. सर 3 members have spoken on poverty and global hunger index. Poverty and global hunger index, कुमारी शैलजा जी, दुराई वाइको जी और गुरमीत सिंह जी. Sir, I want to first of all, with all humility and modesty say, flawed indicators such as the global hunger index for India's sake may not work out. I'm not saying because you have raised a point, but I'll tell you why. इन सब के विश्वसनीयता, I'll try to say it in Hindi, sir. मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पे कुछ बात रखना चाहती हूँ. मैं प्रश्न रखना चाहती हूँ. हाँ, मैं जो विषय मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही. कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज सर, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर? अफ्रीकन नेशंस में आज भी उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है. फिर पाकिस्तान में आज तक आटा की क्यों? मैं आई एम नॉट सेइंग इट इन अ सेंस ऑफ यू लुक एट देम दे आर सफरिंग. नो, I don't want them to suffer, but it is a reality. Today they are not able to obtain even basic food. Here 80 करोड़ लोग के लिए भारत देश में मुफ्त में हम अनाज दे रहे हैं, फिर भी हंगर इंडेक्स में हाई है. ये कैसे ये विश्वसनीयता स्थापित करेंगे? सर, हाउस होल्ड सेविंग्स savings at 50-year low, while household debt has been increased. Sri Honorable MP Abhishek Banerjee ने ये प्रश्न पूछा. Sir, year-wise accumulation. This is very interesting data, sir. I request honorable members to kindly pay attention to this fact. Net financial savings of the household sector from 8.32 lakh crores in 2013-14 has risen to 14.616 lakh crores in 22-23. Net financial savings of the household sector. This is an increase of 70%. Household savings in the form of physical assets. बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश रखना एक चीज है, मगर घर खरीदना या घर में विस्तार करने के लिए कमरा बनाना वो अलग विषय. Today in the form of physical assets, sir, construction of houses or other immovable properties increased from 14 lakh crores in 2013-14 to 35 lakh crores in 22-23. It clearly indicates a shift of savings in the form of physical assets rather than in the form of financial assets. The registered investor base at the National Stock Exchange has tripled from March 2020 to 2024 to 9.2 crores of Indians 31 March 2024 tak. So, potentially translating into 20% of India's households now
are channeling their household savings into financial markets. ये हम ध्यान में रखना चाहिए सर। I'll come to that. I'll certainly come to that. Sir, Honorable Speaker, sir, I'm almost coming to the end, sir, but one or two important points. Sir, I thought you wanted the answers. I thought you wanted the answers. Sir, lack of transparency in budget. Lack of transparency in budget was the issue raised by Honorable Member N.K. Premchandran. I want to highlight the fact, sir. In fact, it is completely the opposite of what used to prevail under UPA. And I'll give you examples with which I want to say this charge, lack of transparency in budget, should actually be posed by N.K.